Hello everybody, welcome to the another video of Business Seeker. In this video, we are going to cover something very interesting. That is the Fayol's Fayol's principles of management. Well, before we proceed with the principles of management, let's understand. Let's try to know something about Henry Fayol. See, Henry Fayol, he was a French industrialist. He was a French industrialist who joined a French mining company in the year 1860. And by the year 1888, that is after 28 years, he became the managing director of this mining company. So, in the span of these 28 years, he developed a set of management principles which he felt that if these principles are implemented in the organization would perform better. इनको लगा कि 28 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद, ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर मेथड हुआ ही होगा बिकॉज he must have tried a lot of things before he could get the positive results. So based on his experience, ये इतना लंबा जो एक्सपीरियंस था, he came up with the set of 14 principles of management which became the Bible of management actually. Even today, all the organization, before coming up with something new or working in the organization, they try to follow these principles. These principles were made by him keeping two things in mind. Number one, that principles should be such that it should be applicable in most of the situation. And secondly, he tried to come up with those principles which were flexible in nature. That means अगर थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड ट्वीक की ज़रूरत होती थी तो ऑर्गेनाइजेशन उसमें कर लेते थे. So two things he kept in mind. Number one, the principle should be, should not be very lengthy or should not be very complicated, so that it can be applied in all the possible situations. And secondly, he kept one thing very clear in his mind, that the principles of management should be flexible in nature. They should not be rigid. Flexible in nature मतलब जब भी इन प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस की ज़रूरत हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो की जा सके. Okay, so this was about Henry Fayol's. Now let's straight come to the principles of management. There are 14 principles. I won't be covering all the principles in one video. मैं तीन तीन चार चार प्रिंसिपल्स करके हर एक वीडियो में कवर करूँगा. ठीक है. Now the first principle of management was division of work. Pardon me for my handwriting, it's really bad. I'm trying my level best. ये मेरा बेस्ट है हैंडराइटिंग में. ठीक है. So division of work means, the first thing he said, that the entire thing in an organization cannot be done by a single person. ठीक है. तो he said अगर डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, फास्ट होगा, और क्वालिटी भी, जो आउटपुट की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी. First, let us understand what division of work is. Division of work means dividing the entire task. Suppose ये पूरा एक task है, into smaller tasks. Just understand this.
dividing the entire task into smaller tasks, and each task is being performed by an individual who is an expert in that. तो सारा एक जो काम है, उस काम को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एंड ईच डिवाइडेड पार्ट शुड बी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर टास्क, और जिसको वो टास्क करने का मन हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ शर्ट फैक्ट्री, जहाँ पे शर्ट बनती है. शर्ट बनने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, ठीक है. तो इसमें कटिंग का काम होता है, ठीक है. फिर स्टिचिंग का काम होता है, ठीक है. उसके बाद बटन्स लगाने का काम होता है, आयरन करने का काम होता है, ठीक है. और पैकेजिंग का काम होता है, लेबलिंग का काम होता है. तो एक शर्ट बनाने का प्रोसेस जो होता है, इट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क्स. लाइक कटिंग का एक अलग टास्क है. सो एक टास्क जो है, एक टीम जो है वो सिर्फ शर्ट के कटिंग का काम करेगी, ठीक है. जो जो क्लॉथ होता है पूरा, जो एक कपड़ा होता है, ठीक है. तो उस पूरे कपड़े को काट के एक शर्ट शर्ट के लिए कटिंग की जाएगी. उसके बाद एक टीम जो है वो स्टिचिंग का टास्क करेगी. स्टिचिंग करने के बाद एक टीम जो है उसमें बटन्स लगाने का काम करेगी. उसके बाद एक टीम जो है उसमें उसको आयनिंग का काम करेगी. सो एक एक सारे शर्ट बनाने का टास्क जो है वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया होता है, ठीक है. एंड एवरी पर्सन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन दीज टास्क, जिस जो कटिंग में एक्सपर्ट है वो सिर्फ कटिंग ही करेगा. जो स्टिचिंग में एक्सपर्ट है वो सिर्फ स्टिचिंग ही करेगा. जो बटन्स लगाने में एक्सपर्ट है वो सिर्फ बटन्स लगाएगा, ठीक है. मे बी एक एक टास्क होगा पॉकेट लगाने का, तो जो पॉकेट लगाने में एक्सपर्ट होगा वो सिर्फ पॉकेट लगाएगा. जो कॉलर लगाने में एक्सपर्ट होगा वो सिर्फ कॉलर काटेगा. सो एवरी when the task is given to an individual as per his specialization, the work is performed at a faster pace, और इसमें गलती करने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. बिकॉज एक तो आप वो कर रहे हो जो आप जिसमें आप बेस्ट हो. सेकंड, जब आप एक ही काम को बार बार परफॉर्म करते हो तो उसमें आप एक्सपर्ट बनोगे ही बनोगे. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें आप एक्सपर्ट बनोगे ही बनोगे. तो दिस इज व्हाट डिविजन ऑफ वर्क इज ऑल अबाउट. इट्स अबाउट डिवाइडिंग द एंटायर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क्स, ओके. एंड ईच टास्क इज गिवन टू अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन दैट. अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे. एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो सुपीरियर रहेगा, ठीक है. सेकेंडली, देखो क्वालिटी ऑफ वर्क सुपीरियर रहने के रीजंस है. बिकॉज जब हर एक आदमी को उनका डिपार्टमेंट दे दिया गया है, सो दे नो कि अगर उनके डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो ही और शी विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर शर्ट के स्टिचिंग में कोई गड़बड़ हो तो स्ट्रेट अवे स्टिचिंग डिपार्टमेंट को बुलाया जाएगा और उनसे बोला जाएगा कि स्टिचिंग में गड़बड़ क्यों हुई है. किसी को भी और नहीं पकड़ा जाएगा यहाँ पे. तो अगर स्टिचिंग में गड़बड़ है तो स्टिचिंग करने वाले इंडिविजुअल को ही ब्लेम दिया जाएगा. सो हर आदमी यहाँ चाहेगा कि मेरे चलते कोई भी काम खराब ना हो या मेरा नाम ना आए, ओके. सो उस केस में क्या होगा? हर बंदा जो है काम अच्छा भी करेगा और बहुत केयरफुल होके करेगा, ठीक है. यहाँ अकाउंटेबिलिटी की मतलब प्रॉब्लम आ जाती है. तो अगर अगर बटन सही से स्टिच नहीं हुए तो किसी को भी नहीं पकड़ा जाएगा, सिर्फ बटन लगाने वाले पर्सन को पकड़ा जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिविजन ऑफ वर्क डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली काम को जो है वो अच्छे तरीके से मतलब लेके जाता है, अच्छे डायरेक्शन में वो प्रमोट करता है, ठीक है. सो क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव्स, क्वालिटी ऑफ वर्क बिकम सुपीरियर. इंक्रीज इन स्पीड, काम करने का स्पीड बढ़ जाता है. बिकॉज जब अगर अगर आप ही हो और आप सपोज करो कि स्टिचिंग का जॉब लेते हो, जब आप एवरीडे स्टिचिंग करोगे तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली आपकी स्पीड बढ़ते जाती है, ठीक है. एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, जब आप एक काम बार बार कर रहे हो तो आप जो है वेस्टेज बहुत कम करते हैं. बिकॉज आपको एग्जैक्टली पता होता है कि स्टिचिंग के लिए थ्रेड कितना चाहिए या कटिंग के लिए क्लॉथ कितना चाहिए. तो आप उसके हिसाब से ही काम करते हो, तो वेस्टेज भी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है.
ठीक है. सो डिविजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल लोग सही तरीके से फॉलो करेंगे, सो मुझे लगता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है. एंड जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको फॉलो करते ही करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड प्रिंसिपल, that is authority and responsibility. Authority and responsibility. Now, what do you mean by authority? Authority is the right to get the work done from others. Authority is the power. ठीक है. अथॉरिटी इज आप दूसरों से काम करवा सकते हो, हक से करवा सकते हो. इसीलिए मैंने क्या बोला, अथॉरिटी इज द राइट टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स it is the obligation to perform the assigned task. ठीक है. Responsibility is you have been given certain task with trust और आपको ये करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. नाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रन्स पैरेलली, मतलब ये दोनों साथ में चलते हैं. इफ अ पर्सन इज गिवन अथॉरिटी, he should be given responsibility as well. And if the person is given responsibility, he should be given the authority as well. Okay. Now let's understand, what do I mean by this? It means that if a person is given a responsibility without authority, if a person is given a responsibility without authority, तब वो काम नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मिस्टर एक्स वर्क्स इन सैमसंग कंपनी एंड मिस्टर एक्स जो है वो सैमसंग की एसी के सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ सपोज इन द ईयर 2019 he has been given the responsibility to increase the sales by 20% as compared to 2018. ठीक है. इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि 2018 में जितनी एसीज कंपनी ने बेची थी, 2019 में उससे 20% ज़्यादा एसीज बेचनी. दिस इज व्हाट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, दिस इज व्हाट ही इज सपोज टू फुलफिल. अब अगर इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ही शुड ऑल्सो बी गिवन सर्टन अथॉरिटी लाइक लेट्स से इस केस में ही शुड बी गिवन एन अथॉरिटी ऑफ डिसाइडिंग कि कंपनी के एसी के एड्स कहाँ देने हैं. ठीक है. एड्स में कितने पैसे खर्च करने हैं. ही शुड बी गिवन एन अथॉरिटी टू रिक्रूट पीपल. ठीक है. ही शुड बी गिवन एन अथॉरिटी टू रिक्रूट पीपल. he should be given an authority to decide जो नए रिक्रूट्स होंगे उनकी सैलरी. ठीक है. सो he should be given full responsibility. He should be given full responsibility to take care of these things. एड्स कहाँ करनी है, किसको रिक्रूट करना है, नए रिक्रूट्स की सैलरी कितनी होनी चाहिए, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस कितना देना है. बिकॉज अगर उनको ये अथॉरिटी नहीं दी जाएगी तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे और इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे. बिकॉज अगर वो हर एक स्टेज पे हर जगह परमिशन का वेट करें, ठीक है, अपने 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 सीनियर्स के परमिशन का वेट करें, तो काम होगा ही नहीं. इसलिए नहीं होगा बिकॉज अब हर एक डिसीजन में डिलेज होंगी तो वो डिसीजन ले नहीं पाएंगे और काम जो है उनका कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. सो इफ ही हैज़ बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, he should also be given certain amount of authority.
And if he is given an authority, he should also be responsible for certain things. Now if he has been given the authority to give ads, to decide the budget of the ad, to decide the budget of the marketing activity, to decide the budget of the new recruits, without any goal, without any responsibility, तब भी ये काम का नहीं है। तब तो ये जो भी मिस्टर एक्स जो हैं, ये तो एकदम बेकाबू हो जाएंगे, बिकॉज इनको लगेगा कि मेरे पास पावर है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। तब तो ये एकदम डेंजरस इंडिविजुअल बन जाएंगे, बिकॉज इनको पता है कि इनको कुछ करना है नहीं, इनके ऊपर प्रेशर है ही नहीं। जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, तो ये अथॉरिटी का मिस यूज़ करेंगे। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी goes parallelly, remember. If they are given equal weightage, if they run parallelly, responsibility and authority, it helps them in achieving targets. It helps them in achieving target, and it also increases the confidence of the employees. It also increases the confidence of the employees. Now confidence of the employees कैसे? Confidence of the employees कैसे? Suppose आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए विदाउट अथॉरिटी, तब आपको भी लगता है यार कहाँ फंस गए, जब हम मेरे हाथ में कोई डिसीजन लेना है ही नहीं, तो मैं कैसे अचीव करूँगा टारगेट को। उस केस में बहुत डिमोरलाइजिंग होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर अथॉरिटी है और आप अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हो विथ अ क्लियर विजन इन योर माइंड कि मेरे को ये अचीव करना है इस पावर से, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आई कैन डू इट नाउ। So it's very simple. See, I mean, these are something which I'm sure हेनरी फ्योल ने बहुत सारे मेथड्स को ट्राई किए होंगे, बहुत सारे मेथड्स फेल हुए होंगे, और जो मेथड्स सक्सेसफुल हुए हैं ट्रायल के बाद, उन्हीं मेथड को वो प्रिंसिपल में डाला है। सो सी दीज मेक सो मच ऑफ सेंस। ओके, थर्ड इज डिसिप्लिन। दिस इज वेरी सिंपल। हेनरी फ्योल सेज दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स होंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, अग्रीमेंट्स होंगे। He says rules, regulation, agreement should be followed. Should be followed. जो भी रूल्स रेगुलेशन सबॉर्डिनेट और उनके बॉसेस के हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन हायरार्की के हैं, हायरार्की को फॉलो करने के हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन पेनल्टी को लेकर के हैं, जो भी अग्रीमेंट किया गया है, वो सबको ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। हर बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। बेसिकली दे शुड मेंटेन decorum, and they should be disciplined in following these activities. इससे क्या होगा? It will increase the efficiency of employee. It will increase the goodwill of the company, you know, goodwill of the company in the market. अगर कोई कंपनी डिसिप्लिन से काम करती है, तो उस कंपनी का गुडविल जो है मार्केट में ऑटोमेटिकली एक बहुत ही पॉजिटिव गुडविल बनता है मार्केट में। you talk about Tatas, you talk about Birlas, you talk about Reliance. These companies are well known. These companies are trusted blindly because they have been following each and every rules and regulation laid down by them. Rather, I was just watching an interview given by Mr. Adi Godrej, the owner of Godrej Industries. He till date, उनकी एज इतनी हो गई है, he said कि उनके लाइफ में एक ही रूल था कि वो सो डिसिप्लिन कि वो हर अपने ऑफिस में हर एम्प्लॉय के पहले वो खुद पहुंचे होते थे, एंड इवन टुडे। एंड इसीलिए गोदरेज जो है सच अ बिग एंड ट्रस्टेड ब्रांड। तो आदि गोदरेज जी ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली बोला था यार, आई मेक श्योर कि डिसिप्लिन मैं फॉलो करूं, तभी तो मुझे देख करके मेरे एम्प्लॉयज़ भी फॉलो करेंगे। अगर मैं ही डिसिप्लिन नहीं हूं तो मेरे एम्प्लॉयज़ कैसे डिसिप्लिन होंगे? सो तो उनके डर से या शर्म से, डर से तो नहीं, शर्म से कोई एम्प्लॉय लेट नहीं करता है।
जिसके चलते काम टाइम पे शुरू होता है और टाइम पे ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, एंड आई फील दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब वन इंडिविजुअल शुड बी हेडेड बाय वन बॉस। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो यू शुड बी गिवन ऑर्डर्स, यू शुड हैव ओनली वन बॉस। आप उन्हीं से ऑर्डर्स लोगे और उन्हीं के ऑर्डर्स को आप इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपके दो बॉस होंगे, इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। गेटिंग माई पॉइंट? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक ही बॉस होना चाहिए। जब दो बॉसेस होंगे, दोनों के व्यूज़ क्लैश करेंगे, दोनों के काम करने का तरीका अलग होगा, एंड अल्टीमेटली आपको एक बंदा कुछ और बोलेगा, दूसरा बंदा कुछ और बोलेगा, और उस केस में क्या होगा, ना वो आपसे काम करवा पाएंगे, ना आप काम कर पाओगे। So unity of command has a very, very simple logic that an individual employee should receive orders from only and only and only one superior at a time, and an employee should be answerable only to that superior. आपका एक ही बॉस हो, आप एक ही बॉस से कमांड लो, एक ही बॉस से ऑर्डर्स लो, एंड यू शुड बी आंसरेबल ओनली टू योर बॉस, ओनली टू योर सुपीरियर, दैट्स इट। अगर बीच में कोई और आके भी आपको गाइड करने की कोशिश करेगा, बीच में कोई और आके आपको ऑर्डर्स देने की कोशिश करेगा, तो होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, यू नो। सो द पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, दैट वन इंडिविजुअल शुड बी हैविंग वन बॉस एट अ टाइम। इज इट क्लियर? अगर दो बॉसेस होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर दो बॉसेस होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहला, सबसे पहला, it will lead to a lot of confusion, it will lead to a lot of confusion। दूसरा, it will lead to a duplication of work। now what do you mean by duplication of work? एक काम को शायद आपको दो दो बार करना पड़े, एक काम को दो दो बार करो, क्योंकि एक बॉस ने बोला तो आपने वो काम कर दिया, दूसरों ने बोला दोबारा करो क्योंकि मैंने नहीं देखा आपको करते हुए, या मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, आप दोबारा करो। ठीक है, it will also create the problem of divided loyalty। now divided loyalty means अगर एक बॉस है तो आप एक को लॉयल रहोगे, 100% दोगे, लेकिन दो बॉसेस हैं, आप किसको, किस पे, किसके साथ लॉयल रहो, किसकी बात ज़्यादा मानो, किस पे आप ट्रस्ट करो, किस पे आप अपना ट्रस्ट बनाओ, इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, एंड इट लीड्स टू disrespect फॉर सुपीरियर। तो अल्टीमेटली आप भी उन्हें रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, आप भी उनकी बात सुनना छोड़ देंगे। सी, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू हैव टू बॉसेस। ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड अल्टीमेटली you'll stop, you'll become irresponsible, there'll be a lack of responsibility, there'll be a lack of responsibility। जब जब आपको पता है कि आपका एक बॉस है, देन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आपको ही काम करना है एंड यू आर आंसरेबल टू हिम। बट आपके जब दो बॉसेस होंगे, तब आप काम कहीं ना कहीं से नहीं करने के बाद भी आप उनको उनको कन्विंस कर लोगे कि आपकी गलती नहीं है, उन दोनों की गलती है, क्योंकि दोनों ने अलग अलग ऑर्डर्स दिए थे। तो हर कंपनी में हर हर डिपार्टमेंट का एक ही बॉस होता है। ठीक है, तो अगर अगर आप सोचो कि सपोज सपोज बजाज कंपनी की बात करते हैं, लेट्स से बजाज। अब बजाज की जो इतनी बाइक्स आती हैं और इतनी बाइक सक्सेसफुल होती हैं, लेट्स से जो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में है उनका बॉस भी एक ही होगा। अगर दो बॉसेस होंगे तो एक को कुछ और डिज़ाइन पसंद होगा, दूसरे को कुछ और डिज़ाइन पसंद होगा, एंड अल्टीमेटली जो आपके काम करने वाले हैं उनको समझ नहीं आएगा कौन सा डिज़ाइन बनाए, एंड अल्टीमेटली जो बाइक बनेगी वो एक अजीब सी ही बाइक बन जाए शायद। So it's very important to understand that unity of command is something that needs to be followed in every organization. And if it is not followed properly, then the company is into a big mess.
Okay, so we'll stop this video here. In the next video we'll continue with the principles of management only. इस वीडियो में मैंने 4 प्रिंसिपल्स कवर किए हैं, और 2 वीडियो शायद इसकी बनेंगी तो ऑल 14 प्रिंसिपल्स विल बी कवर्ड. थैंक यू सो मच.